Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Most gracious, loving Heavenly Father, अति अनुग्रहकारी और प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, our true and faithful God, हमारा सच्चा और विश्वास योग्य ईश्वर, never failing, never changing God, कभी ना चूकने वाला ना बदलने वाला परमेश्वर, covenant keeping God, जो वाचा को स्थिर रखने वाला प्रभु, the what Almighty God, आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। the what the Father of all lights, in whom there is no variableness nor shadow of turning. आप ज्योतिर्मय ईश्वर है, आप में ना कोई अदल बदल है। Thy name is above all. आपका प्रभु जी सर्वोन्नत नाम है। You have loved us with an everlasting love. आप प्रभु जी सनातन प्रेम से हमको प्रेम किया है। Thy love manifested by giving thy precious life on the cruel cross of Calvary. आपका बहुमूल्य जीवन उस कलवर क्रूस में देने के द्वारा प्रकट किया है। Thank thee for thy people whom that brought here. प्रभु जी आपके लोगों को जहाँ पर लाया हम धन्यवाद देते हैं। Those who are yet on the way, hasten their steps and bring them in time in our midst. जो प्रिय लोग मार्ग में है प्रभु, उनका कदमों को शीघ्रता कीजिए और समय से लाइए। We pray for thy people, Lord, they may come with a new zeal and a new enthusiasm to thy house. आपके लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, नया उमंग से नया उत्साह से आपका घर में आ जाए। With a heart full of gratitude, Lord, we exalt thy name because you have been with us since yesterday. प्रभु जी आभार हृदयों से आपके सन्मुख अंधे बल गिरते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कल से लेकर अब तक आप हमको संभाला है। Lord, today also we are committing ourselves and every article of the service into thy hands. प्रभु जी इस आपका मंदिर को और हम सबको भी आज भी अपने हाथों में सौंपते प्रभु, आप ही देखभाल करें। Thank thee, this burden I have given to thy servant, Brother J.C. Rao. प्रभु जी ये बोझ आप भाई जयश्री राव को दिया, धन्यवाद देते हैं। So thy people may be enriched and strengthened and prepared for thy heavenly kingdom. ताकि प्रभु जी आपका लोग आत्मिक जीवन में बढ़ते जाए और आपका राज्य के लिए तैयार हो जाए। Lord, yesterday have released thy word from thy heavenly throne. प्रभु जी कल आपका स्वर्गीय सिंहासन से बातें किए हैं। Today also we are pleading, Lord, falling before thy feet. प्रभु जी आपके चरणों में गिरकर आज के लिए भी हम विनती करते हैं। O Lord, thy presence may be with us. हे प्रभु आपके पुस्तक हमारा संग रहे। Thy people may be strengthened. आपके लोग प्रभु जी बल पाए। Those who are not yet born again, they may be born again. जो नया जन्म नहीं पाया है वो उद्धार का नया जन्म पाए। Those who are lingering in two opinions, speak to them. जो प्रभु जी दो मन चित्त में हैं, उनको प्रभु जी आप बातें करें। Lord, bring thy people all from the different places, प्रभु जी to the meetings. प्रभु जी भिन्न भिन्न स्थानों से अपने लोगों को आप लेकर आइए। Keep thy people in a good health and strength. अपने लोगों को प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य में और तंदुरुस्त रखिए। Thank thee, Lord, you have brought Brother Isaac Abraham and sister from Chennai. धन्यवाद देते प्रभु, अपने दास भाई आइजक अब्राहम को और उनकी पत्नी को, हमारे बहन को लेकर आया। Lord, today also use thy servant mightily in the midst of us. आज भी प्रभु जी अपने दास को बड़े प्रभाव से आप इस्तेमाल करें हमारे बीच में। Remember, Lord, family prayer in the morning. प्रभु जी आज सुबह का परिवार सभा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। Bible study at 10 o'clock. और प्रभु जी बाइबल स्टडी जो 10 बजे का है। 3 o'clock also combined meeting. और प्रभु जी 3:30 बजे जो कंबाइंड मीटिंग के लिए भी। Oh Lord, even evening meeting also for 6:30. Lord, help us to have thy presence. शाम का सभा के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी 6:30 बजे हमारे बीच में रहकर हमको मदद करे। When thy servants are standing to minister thy word, unction of the Spirit may be upon them. जब आपके लोग दास खड़े होते हैं प्रभु, आपका आत्मा का अभिषेक उन पर रहे। Open heavens may be granted to us. खुले हुए स्वर्ग हम सब देख सके। Oh Lord, environment also may be kept under thy control. वातावरण को भी प्रभु जी अपना नियंत्रण में रखे। Open heavens may be granted to us. प्रभु जी खुले हुए स्वर्ग हम देख सके। Through songs and through instruments thy name may be honored. गीतों के द्वारा, बाजाएं के द्वारा प्रभु जी आपके नाम को महिमा मिले। We want thy name may be glorified in the midst of us. प्रभु जी हमारे बीच में आपका नाम अति ऊंचा किया जाए। We bind all the power of darkness with faith and we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. तमाम अंधकार शक्तियों को विश्वास से बांधते हुए ये प्रार्थना लाते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। Amen. आमीन। From this small books, we will sing song number 39. छोटे किताब में से 39 नंबर गीत गाएंगे। Song number 39. 39 नंबर गीत छोटे किताब में। स्वर्ग है मेरा कब मैं देखूंगा,
को आता हूँ प्रभु के पास, मुकुट स्वर्ग का पाने को आता हूँ प्रभु के पास। स्वर्ग है मेरा मेरा, कब मैं देखूंगा। स्वर्ग है मेरा मेरा, कब मैं देखूंगा। उस पर चढ़ गया हूँ, अब तो मैं जीवित नहीं हूँ। उस पर चढ़ गया हूँ, अब तो मैं जीवित नहीं हूँ। प्रभु यीशु महिमा के लिए आगे तो जीऊंगा मैं। प्रभु यीशु महिमा के लिए आगे को जीऊंगा मैं। स्वर्ग है मेरा मेरा, कब मैं देखूंगा। स्वर्ग है मेरा मेरा, कब मैं देखूंगा। और मेरी पूरी करूं, अनुग्रह बहुतायता है। और मेरी पूरी करूं, अनुग्रह बहुतायता है। विश्वास की राहों में मैं आनंद से दौड़ूंगा मैं। विश्वास की राहों में मैं आनंद से दौड़ूंगा मैं। स्वर्ग है मेरा मेरा, कब मैं देखूंगा। स्वर्ग है मेरा मेरा, कब मैं देखूंगा। स्वर्ग में विश्राम पाने को पहुंचूंगा मैं आनंद के साथ। स्वर्ग में विश्राम पाने को पहुंचूंगा मैं आनंद के साथ। दिन और रात नहीं हुआ, प्रभु यीशु जो भी होगा। दिन और रात नहीं हुआ, प्रभु यीशु जो भी होगा। स्वर्ग है मेरा मेरा, कब मैं देखूंगा। स्वर्ग है मेरा मेरा, कब मैं देखूंगा। यीशु बुलाता है, मैं तो रहूंगा तैयार सदा। यीशु बुलाता है, मैं तो रहूंगा तैयार सदा। दिन निकल आते आते इच्छा भी बढ़ती जाती। दिन निकल आते आते इच्छा भी बढ़ती जाती। स्वर्ग है मेरा मेरा, कब मैं देखूंगा। स्वर्ग है मेरा मेरा, कब मैं देखूंगा। मेरे प्रिय यीशु को मैं कब जा देखूंगा। मेरे प्रिय यीशु को मैं कब जा देखूंगा। स्वर्ग है मेरा मेरा, कब मैं देखूंगा। स्वर्ग है मेरा मेरा,
तब मैं देखूंगा। Song number 630. 630 नंबर। बोलो जय जय जय। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय। होशाना जय प्रभु आता है। कैसी खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय जय जय। हम बदल जाएंगे ये तो वेद बड़ा है। हम बदल जाएंगे ये तो वेद बड़ा है। बिजली दूरी फूंकते ही होगा हम उठाए जाएंगे। बिजली दूरी फूंकते ही होगा हम उठाए जाएंगे। प्यारे प्रभु से मिलेंगे हम जो उसके हैं। प्यारे प्रभु से मिलेंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय। होशाना जय प्रभु आता है। कैसी खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय जय जय। उसके समान होंगे हम जो संतान है। उसके समान होंगे हम जो संतान है। प्रभु के प्रकट होने से हम सब अविनाशी पहनेंगे। प्रभु के प्रकट होने से हम सब अविनाशी पहनेंगे। प्यारे प्रभु को पाएंगे हम जो उसके हैं। प्यारे प्रभु को पाएंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय। होशाना जय प्रभु आता है। कैसी खुशी है हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय जय जय। प्रभु को देखेंगे ये है आशा सारी। प्रभु को देखेंगे ये है आशा सारी। आस मिटेगी तृप्तम होंगे प्रभु में भर जाएंगे। आस मिटेगी तृप्तम होंगे
उसके है, प्यारा प्रभु हमारा है, हम तो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है। कैसी खुशी है, हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय जय जय। Please turn to 718 song number. दया करके निकालिए 718 नंबर। प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। भक्ति उपासना से तुझको भजो प्रभु, भक्ति उपासना से तुझको भजो प्रभु, तुझको भजो। प्रभु यीशु का गुण मैं गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं गाऊं। स्तुति प्रशंसा से भरपूर हूँ, कैसे प्रभु अब मैं ये बताऊं। स्तुति प्रशंसा से भरपूर हूँ, कैसे प्रभु अब मैं ये बताऊं। युग युग यही गाऊं थोड़ा ही तो है, युग युग यही गाऊं थोड़ा ही तो है। होठों के बलिदान से तुझे खुश करूं, होठों के बलिदान से तुझे खुश करूं। प्रभु यीशु का गुण मैं गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं गाऊं। याद है मुझको तेरा काम, प्रेम के कारण प्रभु हुआ बलिदान। याद है मुझको तेरा काम, प्रेम के कारण प्रभु हुआ बलिदान। प्रायश्चित तूने किया दिया लहुदान, प्रायश्चित तूने किया दिया लहुदान। इस छोटे मुंह से मैं कैसे कहूँ, इस छोटे मुंह से मैं कैसे कहूँ। प्रभु यीशु का गुण मैं गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं गाऊं। तुझे अच्छा लगा मुझको चुने, माता के घर से मुझे अलग करे। तुझे ये अच्छा लगा मुझको चुने, माता के घर से मुझे अलग करे। मुझ में उसके पुत्र का प्रकाश दे, मुझ में उसका पुत्र का प्रकाश दे। क्या इसके योग्य धन्य बनूं, क्या इसके योग्य धन्य बनूं। प्रभु यीशु का गुण मैं गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं गाऊं। स्वर्गीय दर्शन जो मुझको दिया, निशानी की ओर दौड़ तू सिखाया। स्वर्गीय दर्शन जो मुझको दिया, निशानी की ओर दौड़ मैं सिखाया। पिछली बातों को प्रभु तूने हटाया, पिछली बातों को प्रभु तूने हटाया। आगे ऊपर रहकर दौड़ा चला हूँ, आगे ऊपर रहकर दौड़ा चला
गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं तो गाऊं। शीघ्र ही प्रभु तू अब आ जाएगा, जो दे है जाके ले जाएगा। शीघ्र ही प्रभु तू अब आ जाएगा, जो तेरे है जाके ले जाएगा। बादल में प्रभु हमारा भेंट जो होगा, बादल में प्रभु हमारा भेंट जो होगा। कैसा वो दिन होगा मगर मैं हूँ, कैसा वो दिन होगा मगर मैं हूँ। प्रभु यीशु का गुण मैं गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं गाऊं। भक्ति उपासना से तुझको भजो प्रभु, भक्ति उपासना से तुझको भजो प्रभु, तुझको भजूं। प्रभु यीशु का गुण मैं गाऊं, प्रभु यीशु का गुण मैं गाऊं। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक नया दिन हमें दिखाया, आज का दिन दिखाया और ये भोर दिखाई, रोशनी दिखाई। एक एक दिन प्रभु को दे रहा है। और कल का जो शाम का समय था काफ़ी ऐसा गया हमारा, लेकिन उसके बाद फिर अच्छा दिन हमको मिल गया। सो हम फैमिली प्रेयर के लिए भी इकट्ठा हुए हैं। प्रभु हमारी सहायता करे, हमसे बोले बातें करे। जब प्रभु बोलता है तो हमारे दिल में उत्साह होता है, आनंद होता है। लूका 23 अध्याय पढ़ते हैं उसके बारे में। सो प्रभु हमसे बातें करें। सो हम वचन में से देखेंगे यशायाह की किताब 2 अध्याय, हमारा थीम वर्स है वो, पढ़ेंगे 2 अध्याय उसका 2 और 3। हम सब अपने अपने बाइबल में पढ़ लेंगे एक साथ। यशायाह 2 और 3। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। इसके साथ देखेंगे मीका की किताब। यही प्रोफेसी दूसरी बार वहाँ हो रखी है, सेम प्रोफेसी है वो, मीका नबी की किताब और उसका 4 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 1 से 3 तक। अपने आप बाइबल पढ़ लीजिए। मीका 4, माइका 4 वर्स 1 to 3 हम अपनी बाइबल में पढ़ लेंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और बहुत से जातियों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थ्य जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों से हंसियाँ बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार न चलाएगी। प्रार्थना करेंगे हम लोग। हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते, आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी जो दया हम पर हुई प्रभु जी। पिता परमेश्वर, संसार में प्रभु अनगिनत लोग हैं, अरबों खरबों लोग हैं प्रभु जी। संसार की भीड़ भाड़ में हम चल रहे थे प्यार प्रभु। यशायाह 5:14 कहता है वहाँ पर कि अधोलोक ने बेपरिमाण मुँह पसारा हुआ है और संसार की भीड़ भाड़ आनंद करने वाले सब उसमें जा पड़ते हैं। हे प्रभु, आपने हमको उस भीड़ में से निकाला, चुन चुन के निकाला। धन्यवाद हो। इफिसियों 1:4 के अनुसार जगत को उत्पत्ति के पहले से हमको चुन लिया था। गलातियों 2:14-15 के अनुसार प्रभु आपने समय आने पर हमको बुला लिया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, और आपने हमको
प्रभु जी उद्धार मसीह यीशु में ग्रहण किया। धन्यवाद उस दिन के लिए जिस दिन आपने अपने वचन हमारे हृदय में डाले, हमारे हृदय को खोला, आपके वचन पर विश्वास कर सके। धन्यवाद उस दिन के लिए जब आपने प्रभु हमको कायल किया, पश्चाताप के लिए तक पहुँचाया, जब हम पछताए, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे अधर्म को धोया, हमको शुद्ध और पवित्र किया। धन्यवाद देते हैं। आपका वचन कहता है मरकुस 2:5 में आपने कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लूका 7:48, हे स्त्री तेरे पाप क्षमा हुए। एक दिन आपने ये शब्द हम में से हर एक से भी कहा, प्रभु जी तेरे पाप क्षमा हुए। धन्यवाद देते हैं, पापों को क्षमा दे करके हमको छोड़ नहीं दिया प्रभु जी, बल्कि अपने नज़दीकी में लाए, अपने झुंड में, अपनी कलीसिया में लाए। आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने अब तक हमको संभाला प्रभु जी और हमको आशीष दिया प्रभु जी, हमारे घरानों का उद्धार किया, भाई बहनों का और परिवार को उद्धार किया। धन्यवाद देते हैं हमारे पिता परमेश्वर, और धन्यवाद प्रभु। और आपने बहुमूल्य वायदे भी दे रखे हैं, प्रतिदिन हमारे साथ साथ रहते हैं। हे प्रभु, हम हमारी निर्बलता में सामर्थ्य बन जाते हैं प्रभु, और हमारे अगुवाई करते, अच्छे गुरु हैं, हमको शिक्षा देते हैं, अच्छे अगुवाई हमारे अगुवाई करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, अब तक हमारे अगुवाई करते आए और आगे भी करेंगे, मृत्यु के समय तक करेंगे, जब तक संसार जाने का दिन आएगा। हमारे पिता परमेश्वर, रात भर आपने संभाला हमको, अच्छा आराम विश्राम दिया हमको, और एक दिन हमारी ज़िंदगी में दिया ताकि हम आपकी महिमा करने पाएँ। हम आपके लोग आपके चरणों पर आए हुए हैं पिता परमेश्वर, ताकि कुछ समय हम आपके चरणों पर बैठें। हमने गाने गाए प्रभु, स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग मेरा मीरास है। हे प्रभु, हमको इसकी योग्य बना प्रभु जी, सहायता करें, मदद करें। जो वचन हमारे सामने लाए प्रभु, थीम वर्ष के लिए भी और मीका से पढ़ा प्रभु, आप उस वचन से हमसे बातें करें। हे प्रभु, ये मनुष्य तो प्रभु अयोग्य है, इसको अपने लहू से धोएं, शुद्ध और पवित्र करें। हे प्रभु, नया ताजा अभिषेक दें प्रभु जी, और यशायाह 51:16 के अनुसार अपना वचन इस दास के मुँह में डालें। यिर्मयाह 1:9 के अनुसार स्वर्गीय पिता परमेश्वर, लूका 12:12 के अनुसार आप सिखाइए प्रभु क्या बोलना है। प्रभु मैं मिट्टी और राख हूँ प्रभु, आप मिट्टी और राख का उपयोग करते अपनी महिमा के लिए सहायता करें। दुष्ट की तमाम शक्तियों को हम यीशु नाम से बांधते हैं। हमारे भटकते विचार केंद्रित किए जाएँ प्रभु, हम आपके भवन बैठे हैं, हमारा ध्यान आपके वचन पर लगा रहे, आपके वचनों पर लगा रहे। सहायता करें, मदद करें, स्वर्ग खोल कर बातें करें। पवित्र आत्मा जी हमारे सामने बातें, हर एक से बातें करें। दुष्ट की शक्तियों को से बांध देते हैं, पवित्र आत्मा सहायता मदद चाहते हैं, प्रार्थना ग्रहण करें। सब कुछ मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो यहाँ पर जो थीम वर्स है, अंत के दिनों में क्या होने वाला है, और क्या कहते हैं, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के भवन में जाएं। ये कौन कहता है? ये किसके लिए कहा गया है? आज हम कह सकते हैं हमारे लिए कहा गया, लेकिन ये है सबके लिए है, सबके लिए है। सबके लिए क्यों है? कि यहाँ पर लिखा है कि बहुत से देशों के लोग आएंगे और कहेंगे, बहुत से देशों के लोग यानी भिन्न भिन्न जातियों में से, कुलों में से, भाषाओं में से, प्रकाशित वाक्य में देखते हैं इस भीड़ को, हैं हाथ में खजूर की डालियाँ लिए हुए वो लोग वहाँ पर हैं, और वो लोग कहेंगे, बहुत से जातियों के लोग आएंगे और कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के भवन में जाएं। सो इस प्रकार से प्रभु ने एक द्वार खोला है। परमेश्वर के भेद हैं, और वो भेद क्या है? परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य को नरक में डाला जाए। नरक बनाता शैतान के लिए, जो परमेश्वर से खुश नहीं रहते, परमेश्वर से दूर रहना चाहते हैं, परमेश्वर को नहीं आना चाहते उसके पास। प्रभु ने कहा तुम्हारे लिए भी जगह बनाता हूँ मैं, तुम वहीं रहो, तुम्हें पसंद नहीं तो। सो आओ आओ हम यहोवा के भवन में जाएं। कल हमने देखा था जकरिया 8:23 के अनुसार लोग आएंगे, एक यहूदे के वस्त्र के छोर को पकड़ कर कहेंगे, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, क्योंकि हमने सुना है यहोवा तुम्हारे साथ परमेश्वर रहता है। सो इस प्रकार से जो है ये किसके लिए लिखा है? देश देश के लोगों के लिए ये लिखा है कि आओ हम यहोवा के भवन में जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमको भी प्रभु अपने भवन में लेकर आया है। और मीका में हमने देखा अंत के दिनों के बारे में ये प्रोफेसी है। पहला यूहन्ना 2:18 में यूहन्ना लिखते हैं, हे प्रियो ये अंतिम समय है। अगर वो अंतिम समय था तो अब कौन सा समय है? 2000 साल पहले लिखा था। याकूब 5:5 में लिखा है, तुमने अंतिम समय में धन बटोरा है। आज यही लोग कर रहे हैं, धन बटोर रहे हैं, लेकिन अंतिम समय है। और अंतिम समय की ये प्रोफेसी है कि प्रभु कहता है कि हम आओ यहोवा के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के परमेश्वर के घर में जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस प्रकार से परमेश्वर हमको भी अपने चरणों पर लेकर के आया है। बहुत से जातियों के लिए लिखा हुआ है, कलीसिया में लेकर आया, अपनी मंडली में प्रभु हमको लेकर के आया। कलीसिया क्या है? प्रभु का घर है, प्रभु का भवन है, या प्रभु के लोगों की मंडली है। एक भाई देख रहा था, जूम पे बता रहा था, अन्य जाति था, किसी ने बोला चलो कलीसिया में चलते हैं, तो चलो हमारे साथ कलीसिया में चलो। बहुत दुखी था बेचारा,
कहते कलीसिया क्या है वहाँ पे? शायद है कलेश दूर होंगे वहाँ पे। अगर कलेश दूर होंगे तो मैं चलता हूँ। कलीसिया नहीं जानता हो, उसने सुना कि कलीसिया में जाना मतलब कलेश दूर करना। प्रभु का धन्यवाद आया और प्रभु ने उसके जीवन में भी कार्य किया। सो हम क्या देखते हैं, सबके लिए है, एक उद्धार का द्वार खुला है और आज एक ओपन इनविटेशन है। हे सब मेहनत करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबके लिए है, उसके लिए कोई जात नहीं, कोई कुल नहीं, कोई भाषा नहीं है, सबके लिए है। परमेश्वर द्वार खोल रखा है और परमेश्वर बचा जा रहा और बचा करके और मंडली में जोड़ रहा उनको। अगर हम देखते हैं प्रभु की मंडली क्या क्या है, ये फैमिली प्रेयर है और फैमिली प्रेयर का मतलब है हम एक परिवार के लोग हैं, हम एक परिवार के लोग हैं, एक और स्वर्गीय घराना। एक गाना हम गाते हैं, हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना। स्वर्गीय घराना है, हम भिन्न भिन्न जातियों के भिन्न भिन्न भाषाओं के हैं। आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरी आपके समझ में नहीं आ रही है। भिन्न भिन्न भाषाओं के, भिन्न भिन्न जातियों के, भिन्न भिन्न कुलों के, हमारे कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन क्या देखते हैं, ऐसे जोड़ जोड़ करके प्रभु ने हमको और अपनी मंडली में जोड़ा है और एक परिवार बनाया, एक घराना बनाया। घराने में क्या होता है, एक अपनापन होता है। सो अभी हम फैमिली प्रेयर में बैठे हैं और वो जो गाना हम गाते हैं, ना कोई काला, ना कोई गोरा, ना कोई पढ़ा, ना अनपढ़, ना ज्ञानी, ना एक कर दिया, सबको तूने एक कर दिया। सो वो है प्रभु की मंडली, वो है प्रभु का घर। और हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में देखते हैं, 1 Corinthians chapter 12 में देखते हैं प्रभु के घर के विषय में। 1 Corinthians chapter 12 और उसका 12 अध्याय का 12 पद से आगे पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके बहुत से अंग हैं, उसी प्रकार उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी मिलकर एक देह है। इसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक देह, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हमको एक ही आत्मा पिलाया गया। सो क्या है, कोई दास है, कोई स्वतंत्र है, कोई यहूदी है, कोई यूनानी है, कुछ भी है, हम एक हो गए हैं। हमको प्रभु ने एक कर दिया, मतलब मसीह के लहू के द्वारा हम उसके घराने के बन गए। मसीह के लहू के द्वारा अब हमारा परमेश्वर पिता बन गया। कौन सा वो दिन आया जिस दिन हमने प्रभु को ग्रहण किया। प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए एक ही दुख सहा और एक ही प्रकार का लहू बहाया। गरीब के लिए थोड़ा ज़्यादा, अमीर के लिए थोड़ा कम, ऐसा नहीं किया। एक ही लहू के द्वारा सब बचाए गए हैं। और मैं अक्सर आरती टोपो भाई को याद करता हूँ, रांची का भाई था हैं, और हजारीबाग गया था और वो नहीं गया था मीटिंग में, तो अपने कॉलेज की फीस जमा करने गया था, पर सभा में चला गया। तो दो लोग आपस में बात कर रहे थे, भाई जी इसी दुनिया में पाप क्षमा होते हैं। ये तो सुन रहा था, इसको नहीं पता, इसी दुनिया में पाप क्षमा होते हैं। यीशु ने लहू बहाया हमारे पापों के लिए, मनुष्य के पापों के लिए, और जो पछताता है उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। दोनों बात कर रहे थे और ये सुन रहा था। हजारीबाग से रांची तक सोचता रहा बस में, यीशु का लहू शुद्ध करता है, यीशु का लहू धोता है। और इसी वचन के द्वारा, जबकि उससे कोई मतलब नहीं था, सुन करके क्या है, उसने एक दिन आया, कायलता की प्रभु ने और उद्धार पाया। प्रभु का बहुत बड़ा दास था। सो यीशु मसीह ने हम में से हर एक को एक दिन ऐसा भी हमारे जीवन के अंदर आया जिस दिन प्रभु से हमारी मुलाकात हुई। फिरौन के सामने मूसा कहता है, यह इस्राएल के यहूदियों के परमेश्वर से हमारी भेंट हुई है। निर्गमन 5 अध्याय 2 पद में क्या। सो क्या आपकी उससे भेंट हो गई है? कौन से दिन आपको उससे भेंट हुई है? कौन से दिन प्रभु ने आपके पाप क्षमा किए हैं? और जब हमने यूहन्ना 1 अध्याय 12-13 पद के अनुसार प्रभु यीशु को ग्रहण किया, तो उसने क्या है, हमको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। हम परमेश्वर के संतान बन गए, हमारा नया जन्म हो गया। यह शिक्षा और जगह नहीं मिलती। चर्च घरों में ठीक है, वो बहुत कुछ होता है, भेड़ की कहानी, पेड़ की कहानी, बीज की कहानी, जाल की कहानी, भगोड़ा बेटा, खोया सिक्का, बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन ये मेन पॉइंट है। जिब्राइल स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा था मरियम के बारे में, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मत्ती 1:21 में लिखा है, और पापों से उद्धार करेगा। कौन से दिन हमारे पापों से हमको मुक्ति मिली? पापों की क्षमा 3 प्रकार की है। पहली प्रकार वो क्या है कि जिस दिन हमने गुनाह से माफ़ी मांगी, प्रभु ने हमारे पाप क्षमा कर दिए।
एक बार मैं प्रचार कर रहा था किसी घर में, अक्सर जाता हूँ, और ऐसे ही मैंने आपने पाप किया, आपने पाप किया, आपने पाप किया, सबकी तरफ उंगली गई। सामने मामू बैठा था, मामू मेरा, आपने पाप किया, फट से भड़क गया, मैं तो तेरा मामू हूँ। मैंने कहा मामू है तो क्या करूँ मैं? सबने पाप किया, तुम भी तो इंसान हो, हैं? तो सबने पाप किया है। जिस दिन हमने गुनाह से माफ़ी मांगी, हमारे पाप क्षमा हो गए, ठीक है। अब हम स्वर्गदूत नहीं बन गए, संसार में रहते हैं और आपके पीछे एक पावर लगी हुई है, उसकी बहुत बड़ी उसकी एक मिनिस्ट्री है, उसकी मिनिस्ट्री है, उसके भी ऐसे सेना है, उसकी भी आकाश में है, वो लोग आकाश में है, अंधकार की शक्तियाँ हैं, आपके पीछे उनकी निगाह रहती है। जो ज़्यादा बोलता है उसको ज़्यादा निगाह रहती है, सेवक के ऊपर ज़्यादा उसका फोकस रहता है। ये ज़्यादा बोलता है, इसको पहले पकड़ो, हैं? और इस प्रकार से वो आपके पीछे पड़ा रहता है, आपको गिराने के लिए कोशिश करता ही रहता है। कब तक करेगा? जब तक सांस चल रही है। पहला यूहन्ना 3:9 में लिखा हुआ है, 1 जॉन 3:9 में, जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्या ऐसा हो सकता है? मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूँ। एक ड्राइवर आप रखते हैं जॉब पे, उसको लाइसेंस चेक किया आपने, एक्सपीरियंस देखा आपने, बोला बेटा एक्सीडेंट तो नहीं करोगे? हाँ अंकल मैं एक्सीडेंट नहीं करूँगा। बेटा कागज़ में लिख के दे दे, मैं एक्सीडेंट नहीं करूँगा। लिख देगा वो? क्या मुझे नहीं करनी नौकरी तुम्हारी? अभी तो नया नियम आ गया है, एक्सीडेंट के पास 7 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, 10 साल की जेल होगी ड्राइवर को। ऐसे ऐसे नियम बना रहे। चलो हमें कोई मतलब उनसे नहीं है। वो नहीं लिखेगा कि मैं एक्सीडेंट नहीं, मुझसे एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट होगा, आपसे नहीं किसी और से होगा। अमेरिकन एम्बेसी का ड्राइवर जो राजदूत को लेकर चलता है, राजदूत बैठा था गाड़ी में, झंडा लगा था गाड़ी में, और मोती बाग चौक पर उसने गाड़ी रोकी। वो तो सही है, पीछे ट्रक जाके हिट कर दिया उसको। वही ट्रक वाले को क्या पता है राजदूत है, वो तो लेकिन ठोक दिया। वो उन पे केस नहीं होता, उनको रोकते भी नहीं है, लिख देते हैं कागज़ में, बस छोड़ देते हैं, एम्बेसी वालों को नीच करते हैं, नीली प्लेट होती है उनकी। सो क्या हुआ, ऑफिस में जब गया तो बात हुई इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका, और सबको पता लग गया। भले काम अगर कितने भी करो तुम, कोई नहीं पूछेगा आपको। आपसे गलती अगर हो जाए एक, पूरा दफ्तर में खबर लग जाए, इसने ऐसे करते ऐसे करते। तो क्या हो गया, उस ड्राइवर की ड्यूटी चेंज हो गई। क्यों? आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका। कहते सर मैंने तो नहीं किया, पर नाम तो आ गया ना, इसका एक्सीडेंट हुआ। सो इसी प्रकार से आपके पीछे शैतान पड़ा हुआ है आपको गिराने के लिए, और कोशिश करता ही रहेगा। इसलिए गिर जाते हैं, मगर हमको ये नहीं कि वो गिरा तो मैं भी गिर जाऊं। हम पर जब दाऊद के बारे में सुना, बेतशेबा के बारे में सुना, बहुत हमको बुरा लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? उरिया को तो मरवा दिया, उसकी पत्नी अपने घर में ले आया, 2 काम किए, साथ में मुकुट पहन करके प्रजा के सामने बैठा हुआ है। जब तक नातान नबी ने नहीं समझाया उसको कहानी के द्वारा, उसको पता ही नहीं लग रहा है। और इसीलिए पहला राजा 15:5 पढ़े, 1 किंग चैप्टर 15:5 पढ़े जरा। पहला राजा 15:5, जिसको मिल जाए पढ़ने जोर से, हैं जिसको मिल जाए कोशिश करें। हाँ हाँ हाँ, हाँ एक बात उसने मौका दे दिया, दुश्मन को मौका दे दिया उसने। और फिर रोता है, उसके भजन पढ़ो, 51 भजन पढ़ो, रोता है, मेरे बिस्तरा आंसुओं से भीगता है। सो पहला पाप उस दिन क्षमा हुए जब माफ़ी मांगे। दूसरे पाप कब है? अगर आपसे कोई गलती हो जाए, यदि हमसे कोई गलती हो जाए, तो उस यीशु का लहू, यदि हमसे कोई गलती हो जाए, पहला यूहन्ना 1:7 के अनुसार उसमें क्या लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमको सब पापों से शुद्ध करता है। और एक पहले यूहन्ना 1:9, 1 जॉन 1:9 में क्या है कि यदि हम अपने पापों को मान लें, गलती हो जाए तो हो जाए, करनी नहीं है, हो जाए तो दूसरी माफ़ी है। पहली माफ़ी उस दिन होगी जब पाप क्षमा हुए, दूसरी माफ़ी है अगर आपसे हो जाते हैं। तीसरा क्या होगा, जब प्रभु यहाँ से ले जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा पाप के प्रेजेंस से आप दूर चले जाएंगे। और उस दिन क्या होगा, जूद 1:24-25 पढ़े जोर से, यहूदा 1:24-25। उस दिन क्या है, पाप के प्रेजेंस से भी हम दूर चले जाएंगे। पढ़े जिसको मिल जाए जोर से। आप बेनेडिक्शन भी देते हैं उसका, अब जो तुम्हें ठोकर कर बचा सकता है। हाँ, और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी हो और जुगान युग तक रहे।
हाँ, तो तुम्हें निर्दोष करके खड़ा करेगा। आप जब स्वर्ग में जाएंगे, अभी गाना गाया ना, स्वर्ग मेरा देश, स्वर्ग में जाऊंगा, प्रभु को देखूंगा। और जब आप वहां पहुंचते हैं, आपको जब खड़ा किया जाएगा, आपके अंदर एक भी पाप नजर नहीं आएगा, निर्दोष करके वो खड़ा करेगा। और ये कैसे होगा? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होगा। और इसलिए सुबाराव भाई मुझे अक्सर याद आते हैं, बहुत प्रिय भाई, मैं अक्सर याद करता हूँ उनको। और लूका और 21 अध्याय का 36 पद में क्या लिखा है? तुम इन क्लेशों से बचने और परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। वो भाई तो चला गया, उसके पास चला गया, हम भी लगे लाइन में लगे। सो क्या है, इस प्रकार से प्रभु ने हमको पाप से छुटकारा दिया। यदि गलती हो जाती है, करते नहीं, हो जाती है, तो छुटकारा देता है। और एक दिन पाप की प्रेजेंस से भी हमको लेके चला जाएगा। हमको निकाला, शुद्ध किया, पवित्र किया और स्वर्ग में निर्दोष खड़ा करेगा। और इस प्रकार से प्रभु ने हमको जो है अपने कलीसिया में, अपने झुंड में लाया। एक उदाहरण मैं अक्सर देता हूँ। नदी किनारे लोग जाते हैं और गोल गोल पत्थर देखते हैं, वाइट वाइट, जैसे अंडे गोल जैसे ले जाते हैं। उन ढेर की ढेर लगी हुई है, कितने भी किलो मतलब उठा लो वहाँ से, फिर भी लोग चुन चुन के बढ़िया बढ़िया पत्थर लाते हैं और अपने घर में रखते हैं सजा करके। उस पत्थर से पूछिए, भाई तो इतना सुंदर कैसे बना, ऐसे कैसे बन गया सुंदर? वो बोलेगा, जब मैं चट्टान से टूटा था तो मेरे कोने थे, चारों तरफ चट्टान थी, उससे तोड़ निकले कोने थे। इतना मुझे मतलब घर्षण लगा, लुढ़कते सारे कोने टूट गए, सब कुछ। और लुढ़कते मुझे इतना सेव कर दिया, इसने गोल बन गया। दुखों से निकलने के बाद हमको क्या कहते हैं? तराशे जाते हैं। देखिए यूसुफ के बारे में लिखा है, किस प्रकार से वो दुखों, कभी यूसुफ के जीवन पर गौर कीजिए, बहुत अच्छा उसके जीवन है। दुखों से निकला, भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया और रोटी खाने बैठ गए। आज ऐसे भाई लोग भी हैं, भाई को गड्ढे में डाल दिया और रोटी के लिए हाथ खड़ा कर दिया। अरे ऐसा नहीं भैया, सोचो हम कलीसिया के अंग हैं, कई एक प्रभु की कलीसिया है, ये मेरा भाई है, ये हमारे परिवार है। तो क्या हम उसके दुख को अपना दुख न कहें? जिस दिन हमारा बपतिस्मा होता है, उस दिन प्रभु के दास हमारे सिर पर हाथ रख करके और एक वायदा करते हैं। मेरा बपतिस्मा 10 अप्रैल 1977 में हुआ और वो यमुना नदी में हुआ। मैंने बोला, भाई मुझे नदी में देना। ठीक है, यमुना नदी में हुआ और लाजपत नगर में। और प्रभु के दास ने, विजय विलियम भाई ने, और उन्हें सिर पर हाथ रख के दुआ की और क्या बोला? इसके दुख हमारे दुख, इसका सुख हमारा सुख। हम एक, मेरा दुख अगर उसका दुख है और मेरा सुख उसका सुख है, क्या अनुभव भी करते हैं? एक भाई ने गाड़ी ले ली, हाँ गाड़ी ले ली होगी, मुझे क्या, मन में अंदर है, उसने गाड़ी ले ली, उसने कोठी ले ली, उसने ये ले, खुशी होनी चाहिए ना। कलीसिया के अंग हैं, प्रभु का घराना है, हम फैमिली, प्रभु के फैमिली के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, घराने के लोग हैं। तो हमारा उसके सुख में हमारा सुख, उसके दुख में हमारा दुख। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पता ही नहीं लगता। हम कलीसिया में अक्सर बोलते हैं, अपनी संघ में जहाँ सेवा कर रहे हैं, हम बोलते हैं, भाई अगर आप कहीं जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन दे दो। परमिशन और इन्फॉर्मेशन 2 शब्द इंग्लिश के हैं। परमिशन का मतलब है कि मुझे इजाज़त दो, मैं ये काम करूँगा। इन्फॉर्मेशन ये है, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, भाई आपको बता रहा हूँ। तो हमसे परमिशन मत लीजिए, इन्फॉर्मेशन जरूर दे दीजिए ताकि हम आपके लिए दुआ करें। और लोग चले जाते हैं, बताते ही नहीं हैं, कहाँ हो भाई, फलानी जगह हो, अरे बता तो देते, हम दुआ तो करते। वो हिंदी में कहते हैं ना, घुटने घुटने जल गए, ये बदबू कहाँ आ रही है? बताओ जरा, पिन लगने से दर्द होता तो घुटने तक जल गए, पता नहीं लगा। ऐसे क्या सेंसलेस। कलीसिया क्या है, प्रभु की मंडली क्या है, प्रभु का घर क्या है, प्रभु के लोग क्या हैं? अपना उसका दुख अपना दुख, सुख अपना दुख। हाँ ये सही बोला है। कई बार क्या उसका सुख अपना दुख बन जाता है, उसका सुख। अक्सर जब देखो वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और घर वाले बोलते हैं, जब देखो बाइबल पकड़ते, मैंने कहा बोतल तो नहीं पकड़ी ना, बाइबल तो पकड़ी है। पहले जब बोतल पकड़े रहता था तब तो कुछ नहीं बोलते थे, तब जीवन बर्बाद था। सिगरेट पीना, शराब सिनेमा देखना, गंदे जगह जाना है, वो उस टाइम तो कोई सबको खूब बहुत अच्छा। अब सुधर गए जी, बदल गया। धर्म परिवर्तन, लोग धर्म परिवर्तन ना, हम तो चैलेंज से कहते हैं, बताते हैं, ये मन परिवर्तन है। धर्म परिवर्तन मन परिवर्तन है। तो प्रभु ने क्या है, हमको निकाला, एक रॉ मटेरियल को निकाल करके तराशा
तराश करके और शुद्ध और पवित्र किया और मंडली में जोड़ दिया। अब वो सुंदर सुंदर जो पत्थर होते हैं ना, जिनको लोग घरों में रखते हैं, ऐसे ही प्रभु जो है हमको तराश करके और अपने कलीसिया में रखता है कि टैलेंट प्रभु दे रखा है, मिट्टी से निकाल करके और क्या है ऊंचे स्थान तक पहुंचा है। पहला राजा 16:2, 1 Kings 16:2, 1 Kings 16:2, कोई पढ़ लें जोर से। पहला राजा 16:2, पहला राजा 16:2, 1 Kings 16:2। हाँ, कोई भी पढ़ लो भाई। हाँ हाँ हाँ, पहला 16:2 पढ़ रहे हैं आप? अरे पहला राजा 16:2। हाँ, मैंने तुझे मिट्टी पर उठाया और क्या अपनी प्रजा इस्राएल का राजा बनाया। दाऊद क्या था, कुछ की वैल्यू ही नहीं समझते थे। घर में इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, सैमुएल आ रखे हैं घर में और प्रोग्राम चल रहा है, बहुत अच्छा वही भी बात वहाँ पर है। और सैमुएल बोलता अपने यशय से बोला अपने लड़कों को ला। शमा आया, बहुत तगड़ा लंबा चौड़ा। प्रभु ने कहा उसके रूप को देख कर विश्वास वो न कर, परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं, पर मनुष्य बाहर का रूप देखता है, परमेश्वर मन को देखता है। शमा आया, एलियाब आया, किनारे करता गया। कोई और बच्चा है? हाँ जी, एक है छोटा सा, वो भेड़ बकरी चरा रहा। कहाँ से उठाया उसको और राजा बना दिया, मिट्टी से उठाया और राजा बना दिया। यही प्रभु ने हमारे साथ भी किया। हमको भी कहाँ से उठाया? मिट्टी से उठाया। हमारा जो पिछला जीवन जब हम मसीह में नहीं थे, आपकी भी गवाही हो सकती है, आपके भी बता सकते हैं लोगों को। गवाही का मतलब क्या होता है कि कैसे आपसे कि प्रभु से मुलाकात हुई, कैसे प्रभु ने आपके जीवन को बदला। गवाही का मतलब ये नहीं कि इधर गया तो उधर गया, वहाँ गया तो यहाँ गया, नहीं। वो कौन सी घटना थी जिस घटना ने आपके जीवन को बदला, कैसे आप मसीह को ग्रहण किया, मसीह और बदलने के बाद छोड़ने दिया उसने, हमको अपने पास लेकर के आया। जब मैं मसीह के पास आया तो किसी ने बोला तुम ना पेंटिकॉस्टल के पास जाओ, वो चर्च बहुत अच्छा है, वो हालेलुया बहुत जोर से बोलते हैं, पवित्र आत्मा आता है वहाँ पे और उतर जाता है और ये होता है। मैंने कहा चलो ठीक है, उनके भी जाके देखते हैं। किसी ने बोला तुम ना वहाँ जाओ, ये कैथोलिक के पास जाओ, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, नन होते उनके और फादर होते उनके, और वो भी अच्छा चर्च होता है। अब मैं भटक रहा था, कहाँ जाऊँ। सच्चाई तो पता लग गई थी कि सच्चाई तो यीशु मसीह में है और किसी सच्चाई तो है ही नहीं। तो और मुझे बपतिस्मा लेना जरूरी है, अगर बपतिस्मा नहीं होगा तो मैं रह जाऊँगा, मैं यहीं रह जाऊँगा। बपतिस्मा कैसे लूँ मैं, कैसे जाके लूँ, किससे लूँ मैं? सो क्या है, जंगपुरा एक जगह है दिल्ली में, जंगपुरा पार्ट 1 राजू थोड़ के पास कुछ अंग्रेज रहते थे E9 में। वहाँ गया, बहुत साल हो गए, 50 साल के करीब, 40-45 साल है। और रात को 9 बजे उनकी घंटी बजाई, अंग्रेज बाहर आए, बोला क्या बात है? उनका हाँ मुझे बपतिस्मा चाहिए। अरे तुम्हें बपतिस्मा चाहिए, क्या होता है? मैंने प्रभु को पाया है, यीशु को जानते हैं और बपतिस्मा चाहिए। अरे तुम चर्च में आओ, उधर बपतिस्मा मिलता है, इधर नहीं मिलता। अच्छा जी ठीक है। फिर मुझे एक वो ले गए, कहते हैं मेथोडिस्ट के कुछ लोग हैं गढ़वाली, पॉल अंकल। फिर उनके आश्रम में उनके पास गया, अंकल मुझे बपतिस्मा चाहिए। चलो ठीक है आपको दे देंगे। मैंने कहा वैसे ही देना जैसे यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने कहा यर्दन में लिया तो मैं भी नदी में लूँगा, जब पानी में डुबा करके। कहने लगे हाँ देंगे। जब बपतिस्मा का टाइम आया तो बोलने लगे हमारे मिशन का रूल नहीं है। फिर मैं क्या करें फिर आपके मिशन के अंदर? फिर मैं क्या करूं? तो आपको तो जैसे हम मिशन का रूल हो वही करना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा करो, मुझे नहीं मेरी बीवी को भी दे दो। तो कहने लगा ठीक है। तो मैं अपनी बीवी को लिया गांव से, कुछ नहीं जानती बेचारी, यीशु प्रभु को नहीं जानती, क्रिश्चियन लोग को नहीं जानती, हम तो हिंदू बैकग्राउंड से हैं, नहीं जानती हैं, हम तो देवी देवता पूजने वाले लोगों से इनमें से निकले हैं। खुदा का शुक्र है, जब मैंने यहोशू की किताब पढ़ी 24 अध्याय 2 पद में, तुम्हारे बुजुर्ग यर्दन फरात नदी के पड़ले और रहते हुए अन्य देवताओं की पूजा करते थे। इब्राहिम के बुजुर्ग लोग देवता पूछते थे, अगर मेरे पूछता तो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग हमको कहते हैं तुम तो कल के ईसाई बने हो, प्रभु कर रहे हो, हम तो खानदानी हैं। हमें खानदानी होते बेटे बीमारी, खानदानी होते पशु हैं। क्रिश्चियन खानदानी होता। मसीह का लड़का मसीह तब बनेगा जब उसके जीवन में प्रभु आएगा। सो क्या है वो, मैंने कहा बीवी को दे दो। वो गांव से गया, मिसेस को भी ले आया। लोधी रोड पे चर्च है दिल्ली में।
है मेथोडिस्ट का। वहाँ गए, हमको खड़ा करा गया, थोड़ा कटोरे में पानी रख के यहाँ रख के उसके भी सिर में रख दिया, होगी जी बपतिस्मा, चलो ठीक है जी। लेकिन चलता रहा उनके साथ में, 1.5 साल चला। फिर आगरा में ताजगंज है, ताजमहल के पास ताजगंज, वहाँ पे मुग़ल होटल है। जब वो बन रहा था तो मेरी ड्यूटी वहाँ मुग़ल होटल में थी। तो वहाँ पर कलेक्ट्री है, आगरा में कलेक्ट्री है, वहाँ पर एक मेथोडिस्ट चर्च है। शाम को 4 बजे मेरे पास फिएट गाड़ी थी, उधर गया, गाड़ी पार्क करके अंदर गया और पूछा भाई ये चर्च किस टाइम लगेगा। तो चर्च कंपाउंड में केयर टेकर था, प्यारे लाल उसका नाम। मैंने कहा बोला कि मैं मेथोडिस्ट का मेंबर हूँ, मुझे यहाँ आना है। तो और फिर मैं गवाही जरूर देता हूँ। अगर मुझे 5-10 मिनट या 15-20 मिनट कोई के साथ बैठने पड़े ना, मैं वो कैसा सुनाऊँ है, मैं बहुत रहता है। तो खड़े खड़े उसको सुना लग गया, मैं गढ़वाली हूँ, मैंने उद्धार पाया, प्रभु को पाया, यीशु को पाया। अब 15-20 मिनट सुनने के बाद बोलता है भाई जी आप यहाँ मत आओ। चर्च कंपाउंड में मेथोडिस्ट का, वहाँ पे आगरा में कलेक्ट्रेट के पास मेन बाज़ार में, कभी मिलेगा देख लेना है। तो चर्च वहाँ पे, यहाँ मत आओ। मैंने कहा क्यों? नहीं आपकी जगह ये नहीं है। तो मैं मेरी जगह कौन सी है? आप जाओ रामेश्वर लाल के पास। रामेश्वर लाल, और वो कौन है? मैं कहा रामेश्वर लाल। बोला रामेश्वर लाल भाई हैं, ये मकान नंबर ये है बालूगंज, ग्वालियर रोड, आगरा, इस साइड उस पर जाओ, तुम्हारे जैसे वहीं मिलेंगे। स्टार्ट की गाड़ी, फिर वहाँ चला गया। वहाँ गाड़ी पार्क करके फिर अंदर गया, जूते चप्पल बाहर रख के, सब लोग बैठे हुए थे गोल धारा में, छोटी कलीसिया थी, और रामेश्वर लाल बैठे थे। और वहाँ गया और उनसे मुलाकात हुई। तो प्रार्थना का दिन था, उसके बाद वो था सैटरडे का दिन था। फिर बोले कल संडे को भी आना। संडे को वहाँ गया, बहुत आनंद लगा, बहुत आनंद लगा। एक गाना है, हे ईश्वर मेरे राजा मैं तुझको सराहूँगा, वो हारमोनियम बज रही थी, ढोलक बज रहा था, मैं बैठा था, वो गाना चला, मैं रोता ही रहा, मैं गा नहीं पाया, रोता ही, इतनी खुशी हुई मुझे। फिर मैंने कहा अच्छा तो प्रभु का एक नया एक अनुभव मिला, कलीसिया का अनुभव मिला, प्रभु के घर का दर्शन मिला। अभी जो मंडली संगम बिहार में उसका नाम है, भाई ने नाम दिया हमको प्रभु की ओर से, वह बेतेल हाउस ऑफ गॉड, जो कि उत्पत्ति 28 अध्याय जेनेसिस 28 में याकूब ने दर्शन देखा। और वो कहता है ये स्वर्ग का फाटक होगा, स्वर्ग के फाटक में हम खड़े हैं, जाने के दिन आएगा ले जाएगा, वहाँ से तैयार कर रहा है। सो क्या है, 2 महीने वहाँ रहा। फिर मैंने कहा भाई से, रामेश्वर लाल से, अब तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ तो मंडली नहीं है। कि वहाँ भी मंडली है, वहाँ पर E18 लाजपत नगर बिहाइंड मूलचंद हॉस्पिटल, भाई एजिक वहाँ पे, मैं लेटर दे दूँगा। उस टाइम लेटर चलते थे, जैसे पुराने टाइम पे हैं लेटर चलते थे, मैं लेटर दे दूँगा, तुम वहाँ चले जाना। तो फरवरी के महीने में, और ये 86 की बात है, 76 की बात है। 74 में प्रभु पास आए मैं, और 76 में मंडली में आया, फिर फरवरी के महीने में, और पीछे जाके बैठ गया। मैं किसी को जानते नहीं था, मंडली में बैठ गया। जैसे वर्शिप आगरा में करता था वैसी वर्शिप यहाँ भी करने लग गया। फिर सभा के बाद आजिक भाई से बोला, भाई जी मैं तो आगरा से आया हूँ और रामेश्वर लाल भाई ने भेजा है। तो कहने लगे हाँ आपके लिए मुझे लेटर मिल चुका है, आप यहीं आओ। सो कैसे प्रभु ने जो है निकाल करके और सही स्थान में हमको ले आया, प्रभु के मंडली में ले आया, प्रभु के घर में ले आया। सो इस प्रकार से प्रभु जो है एक रॉ मटेरियल को तराश करके, आपकी भी ऐसी गवाही हो सकती है, आपकी अलग गवाही हो सकती है, कैसे आपने प्रभु को पाया, कैसे आपका जीवन बदला, कैसे प्रभु ने आपको ग्रहण को नई जिंदगी दी, आपकी अपनी गवाही हो सकती है। सो इस प्रकार से हम अब प्रभु के घराने में हैं। एक समय क्या था, हम प्रभु के घराने के लोग नहीं थे, अन्य जाति लोग थे, या भिन्न भिन्न जातियों में बिखरे हुए लोग थे। अब हम प्रभु के घराने के लोग हो गए हैं। प्रभु के घराने, पुराना मार्ग छोड़ दिया। अय्यूब 22, जॉब 22 एंड वर्स 15 होगा। जॉब 22 और वर्स 15 पढ़ें। अय्यूब 22-15। हाँ हाँ, अय्यूब की किताब में लिखा है, क्या तू पुराने रास्ते को पकड़े रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं। पुराना रास्ता कैसा था हमारा? रोमन्स चैप्टर 3, रोमन 3 अध्याय 16-17, रोमन्स 3:16-17, रोमन्स चैप्टर 3:16-17 पढ़ने मिलता हूँ। पढ़े भाई, चलो मैं पढ़ लेता हूँ। रोमन्स 3:16-17, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आँखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय नहीं है। हमारा पुराना मार्ग, पुराना रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता,
इस प्रकार से जो है अब हम परमेश्वर के घराने के लोग बन गए हैं। प्रभु हमको तराशता जा रहा है और हमने कहा आओ हम यहोवा के पर्वत पर चलें। पर्वत के बारे में प्रभु के दासों ने समझाया और भाई बख्श सिंह ने किताब लिखी है 40 पर्वत शिखर, मेरे पास भी है, आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए उसको भी हैं। हर पहाड़ कुछ न कुछ कह रहा है, हर पहाड़ कुछ न कुछ कह रहा है, हर पहाड़ से एक संदेश हमको मिल रहा है। सो इस प्रकार से यशायाह की किताब में कल भाई बता रहे थे, यशायाह किताब के बारे में भी पूरी उसके अंदर कैसे उसका जन्म होगा, क्या उसकी सेवा क्या होगी। यशायाह 35 अध्याय में हम पढ़ते उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आइज़ाया 35 ये प्रभु की सेवा के बारे में लिखा है। 35 वर्स 5। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे और लगड़े हिरण के सिर चौकड़े भरेगा और गूंगे जीभ से साफ जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी, सूखी भूमि में सोते फूट निकलेंगे और जिस स्थान से सियार बैठा करता है उसमें घास और नरकट होंगे। ये प्रभु की सेवा है। जब प्रभु दुनिया में थे, देह में थे, और जन्म का अंधा उसकी आंखें खोल दी, लगड़ों के पैर खोल दिए, गूंगों की जुबान खोल दी, ये उसकी सेवा है। उसका जन्म कैसे होगा यशायाह खुद बताता है 7:14 में। कुंवारी गर्भवती होगी, एक बालक को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। सो उसका जन्म कैसे होगा, उसकी सेवा कैसे होगी, उसका बलिदान कैसे होगा, ये उसका बलिदान के बारे में यशायाह 53 अध्याय कहता है। जी उठेगा वो, मुर्दों में से जी उठेगा वो। यशायाह 53:10 पढ़ें जरा। आइज़ाया 53 वर्स 10। मुर्दों में से जी उठेगा, उसके अंदर क्लू मिलता है, एक दर्शन मिलता है। 53 वर्स 10। हाँ, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तो वो अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन तक जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ, तो इस प्रकार से जो है जब वो प्राण बलि करेगा तब वंश को देखेगा। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। कई बार जब बच्चे तरक्की करते हैं तो बोलते हैं काश मेरे मामा पापा जिंदा होते तो देखते मैं कितना तरक्की कर रहा हूँ, मेरे घर में कितने बदल गया हमारा घर हैं, हम कहाँ गांव में पड़े हुए थे हैं, आज एक अच्छे घर में रह रहे हैं, काश मेरे दादा जिंदा होते। ये क्या कर रहे हैं, जब प्राण दोष बलि करेगा तब वंश देखने पाएगा। अब हम उसके वंश के लोग हैं, आज हमको देखता है वो, आज हमको देखता है। हमारा प्रभु कब्र में नहीं है, हमारा प्रभु जो है वो क्रूस पर भी नहीं है। संसार के लोग चलने दो उनको, भीड़ की भीड़ चल रही है। ईसाई धर्म है, लोग चल रहे हैं। कई चर्च घरों में दिखा यीशु मसीह की तस्वीर लगी हो, बड़ा गोल ढाका नहीं कहते कभी देखने के लिए हैं, ओ बड़ा लकड़ी का यीशु मसीह बना रखा है, हाथ पर लाल रंग लगा रखा है, पैर में लाल रंग, यहाँ पे लाल रंग। अरे क्या भैया, हमारा प्रभु देखता हुआ इनको भी है। हमारा प्रभु ना तो कब्र में है ना क्रूस पर है, वो जीवित है और कहाँ है, हमारे हृदय में रहता है और स्वर्ग में विराजमान है। सो प्रियो, उन्होंने कहा, संसार के लोगों ने कहा आओ हम यहोवा के पर्वत पर चलें। कौन थे वो? हम लोग थे। यहोवा के पर्वत पर चलें, याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। याकूब का क्या, याकूब कौन था? याकूब का जब तक प्रभु से मुलाकात नहीं हुई थी तब तक उसका जीवन कुछ और ही था। जब्बोक नदी के किनारे, जब जब्बोक नदी पर जब कि प्रभु से मुलाकात हुई और मलयुद्ध हुआ प्रभु के साथ उसका, और तब उसको प्रभु बोलता है मलयुद्ध करते करते जो है उसकी जान की नस अकड़ गई और वो दूत बोलता है मुझे छोड़ मैं जाऊं। पढ़ लेते हैं जेनेसिस वहाँ पर जब्बोक नदी के में उसकी मुलाकात होती है। जब वो आता है वहाँ से वापस अपने मामू के घर से वापस आता है, 32 में होगा, जेनेसिस 32 है, हाँ 32, हाँ 32 का 26 पढ़े तो, हाँ 26 पढ़े, 26। उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। हाँ, और पढ़ो। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इजराइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी
भी जोत करके प्रबल हुआ है। हाँ, सो इस प्रकार से जबोक नदी के पास जब उसकी प्रभु से मुलाकात होती है और मलिद होता है, तब प्रभु बोलता तेरा नाम क्या है? बोलता मेरा नाम याकूब है, अड़ंगा मारने वाला। मैंने भाई को धोखा दिया, मैंने पापा को धोखा दिया, मैंने ससुर जी को भी धोखा दिया, मैं टेढ़ा तिरछा आदमी हूँ। तब प्रभु ने कहा अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। इज़राइल का मतलब क्या होता है? साम 73 वर्स 1, भजन 73:1। इज़राइल का मतलब वहाँ पर दिखा रखा है, भजन 73:1, 73 वर्स। इज़राइल के लिए हाँ, अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर खड़ा है। इज़राइल मतलब शुद्ध मन वाला है। प्रभु ने कहा, नतनेल को अपने पास आते हुए देखा, हम जॉन में पढ़ते हैं, सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं है। टेढ़ा जीवन था, तिरछा जीवन था, बिगड़ा हुआ जीवन था, बर्बाद जीवन था। हमारे पुरानी ज़िंदगी जब तक मसीह हमारे जीवन में नहीं था, ऐसे ही हमारा जीवन था, ऐसे हमारा जीवन था, चल रहा था संसार में। जिस दिन प्रभु से मुलाकात हुई है, प्रभु ने हमारे असलियत हमको बताई, प्रभु ने हमको पापों के लिए कायल किया, पछताए तो प्रभु को ग्रहण किया, जीवन बदला हमारा। मैं तो शराब का व्यापारी था, हरियाणा में जाता था, बदरपुर, एक सुना है बदरपुर, वहाँ जाता था शाम को और वहाँ से शराब लाता था, बोतल की बोतलें, उसके क्या कहते हैं, जगाधरी नंबर 1 मसालेदार हैं, और घर में आकर के लोग आ जाते ले जाते थे। प्रभु और क्या है, कमाता था पैसा। जब प्रभु ने बोला तेरा बेटा अगर शराब पिएगा तो पिलाएगा उसको, प्रभु को ग्रहण करने के बाद क्या हुआ है? मैंने कहा मैं तो अपने बेटे को शराब नहीं पिलाऊंगा। तो भी नहीं पी सकता। हम बोतलें फेंक दी, वो जितने आते थे जाते थे, भैया आप मत माना, दरवाजा बंद हो चुका, दरवाजा बंद हो चुका। जॉर्डन खान भाई बच्चन गवाही दे रहे थे, बहुत अच्छा भाई था जॉर्डन खान, और गवाही दे रहे थे। वो कराची में थे उस टाइम, पहले पीते खाते थे, उनका जीवन भी ऐसे ही था पहले है। जब जीवन बदला, कराची में, वो रेलवे में थे, वो वहाँ कराची में उन्होंने क्वार्टर लिया वहाँ का किराए पे, और क्वार्टर में लगा नीचे आबकारी जहाँ लोग आके पीते हैं, ऊपर भाई का कमरा, गवाही दे रहे थे भाई लाजपत नगर में है। तो शैतान बोलता है अरे थोड़ा पी लेना, नीचे चला तो पी लेना। बोलता शैतान ये दरवाजा बंद हो चुका है, बगड़ पड़ोसी का खटखटा उसका खटखटा, ये तो बंद हो चुका दरवाजा। सर जीवन बदल जाता है, क्या है? सो हमारा जीवन मसीह में आने से पहले बर्बाद जीवन। प्रभु ने कहा तेरा बेटा सिगरेट पिएगा तो पिलाएगा उसको। मैंने कहा मैं तो नहीं पिलाऊंगा। तो भी नहीं पी सकता, छोड़ दिया। मेहता भाई यहाँ बैठा हुआ है, प्रभु ने उसका जीवन जो बदला, मुझे मालूम है। उसके पास एम्बेसडर गाड़ी थी, और एम्बेसडर गाड़ी के बगल में डैशबोर्ड होता है, आगे डैशबोर्ड होता है। इतना बड़ा बीड़ी का बंडल और 2 माचिस की डब्बी उसमें हर टाइम रहती थी और जहाँ भी गाड़ी खड़ेगा, चैन स्मोकर। आज जो कहते कोई पिए तब मुझे बुरा लगता है, भाई दूर होकर पी ले। बदल दिया जीवन को प्रभु ने बदल दिया। आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़ें। प्रभु का धन्यवाद हो, हम उन्हीं लोगों में से हैं जो हम प्रभु के पर्वत पर चढ़े, या और याकूब के परमेश्वर के घर में जाएं। याकूब का परमेश्वर क्या है? जेनेसिस चैप्टर 35, उत्पत्ति 35 अध्याय में आइए। याकूब वहाँ पर कुछ ऐसी बातें बताता है कि हम यहोवा के उपासना करें। 35 जेनेसिस 35 और 1 पद से पढ़ें जिसका याकूब से कहा यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन किया था जब तू अपने भाई एसाव के घर से भागा जाता था। तब पढ़ो। याकूब ने अपने घराने से और उन सबसे भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो प्राय देवता है उन्हें निकाल के दो और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम यहाँ से निकलकर बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुनी और जिस मार्ग में चलता था उसमें मेरे संग रहा। हाँ, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसने कहा आओ हम बेतेल को चलें और वहाँ क्या करूँगा, मैं एक वेदी बनाऊंगा। इसलिए क्या करना है, तुम अपने बीच में पराये देवताओं को निकालो। पराये देवता क्या है? जिनके पीछे हम चल रहे थे। मूर्ति क्या है? मूर्ति ये नहीं कि वो जो पत्थर के बनाए जाते हैं, लकड़ी के बनाते हैं। पैसे की भी मूर्ति है। बहुतों के दिल में पैसे की मूर्ति बैठी हुई है। पैसा पैसा पैसा, कैसे मिलेगा पैसा? मसीह तो हैं, क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन पैसे का जीवन बदला नहीं है। धर्म के पीछे चल रहे हैं, पैसा कमा रहे, धन कमाना। पैसा कमाना पाप नहीं है, लेकिन पैसे को पहला स्थान देना पाप है।
एक बार एक चर्च के अंदर क्या हुआ, चर्च लगा हुआ था और एक मिस्टर डेविड, वो लास्ट में आता था, अक्सर देर में आता था, वो कभी कभी जाता था और जाके पीछे बैठ गया। अब चर्च के पास्टर ने सोचा आज डेविड आया है, चंदा अच्छा ही देगा ये और बोला, सब मीटिंग के बाद बोला, हम मिस्टर डेविड से निवेदन करते हैं कि वो दुआ में हमारी अगुवाई करें। और डेविड दुआ करना आती नहीं घर में भी दुआ नहीं करता, वहाँ कैसे करेगा। अब सब ने आंखें बंद करी, वो पिट से निकल गया, स्टार्ट गाड़ी घर चला गया और पास्टर बोला डेविड जी दुआ करे, कहाँ दुआ करे, देखा चला गया घर। जीवन नहीं बदला। नाम डेविड है, माइकल है, सैमुअल है, कैसे ही नाम रख लो, स्वर्गदूत का नाम रख लो, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन कैसे बदलना चाहिए हैं। सो इस प्रकार से जो है तुम्हारे बीच में पराये देवता हैं, चाहे पैसे की मूर्ति हो, पत्नी बच्चे। एक भेद की बात बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए इस बात पे। प्रभु ने लूका 14:26 में कहा, लूक 14:26, जो कोई मेरे पास आए, माता पिता पत्नी लड़के बाले सबसे उनसे उनको अप्रिय न जाने, मेरा चलन नहीं हो सकता। आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, आपको पहले बताया जाता है, हमारे ऑफिस के ये रूल हैं, 9 बजे ऑफिस खुलता है, आपको 9 से पहले पहुंचना है, हमारी इतनी छुट्टियां, इतनी ड्यूटी, इतना आपको पैसा मिलेगा, सब कुछ बताया जाता है। यीशु मसीह ने भी यही किया। अगर वो इसके पीछे आता है, मम्मी पापा भाई बहन पत्नी बच्चे लड़के सब सेकंड पे, ये नहीं कहा छोड़ दो। एक लड़के को मैंने, क्योंकि उसको प्रभु के पास आया, ग्रहण किया प्रभु को, वो पटियाला में रहता था, और मैंने उसको चिट्ठी लिखी, बेटा सबसे ज़्यादा प्रभु प्यार करना, मम्मी पापा भाई बहन सब ज़्यादा प्यार करना, सेकंड पे सब हैं, पहला स्थान प्रभु का है। वो चिट्ठी उसके पापा के हाथ लग गई, पापा ने पढ़ी, अरे सतपाल तो लड़के को बहका रहा, मम्मी पापा को छोड़ दो। और फिर उसने वहाँ से घर चिट्ठी लिखी, और घर में उसकी बीवी मेरी बीवी लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। फिर वो चिट्ठी लिखते वहाँ से, पहले चिट्ठी आती थी हमारी है, अरे क्या तुम शिक्षा देते लोगों को, मम्मी पापा को छोड़ दो, ये वो ऐसे बोल रहे हैं। मैंने कहा समझ नहीं आ रही ना, इसलिए बोल रहे हो। पहला स्थान प्रभु का है आपके जीवन के अंदर, पहला स्थान प्रभु को देना है, कहीं पर भी हो। लूका की किताब 3 अध्याय, लूका की किताब 3 अध्याय, लूक चैप्टर 3। लूक चैप्टर 3 वंस, उसका 10 से आगे पढ़े, 10 से 10 से आगे पढ़े। हाँ तब लोगों ने उससे पूछा, हाँ तो हम क्या करें? हाँ उसने उत्तर दिया, जिसके पास 2 टोकरे हों हाँ और उसके साथ जिसके पास नहीं है काट दे, हाँ और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। मजदूर लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उनसे पूछा, हे गुरु हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उसे अधिक न लेना। सिपाहियों ने भी उससे पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। हाँ, हर एक पूछ रहा हम क्या करें। आप भी पूछिए प्रभु से, सुबह उठते हैं, प्रभु आज मैं क्या काम करूं, क्या काम करूं? वो घूस दे रहा मैं ले लूं, टेबल के ऊपर से इतना मिलता है टेबल के नीचे सब्जी ले लूं मना कर देगा। पूछिए प्रभु मैं क्या करूं। सब ने पूछा, सिपाही ने पूछा, प्रभु ने बोला घूस भी नहीं लेना, झूठ भी नहीं बोलना, उपद्रव भी नहीं करना, जो पैसे मिलते उस पर गुजारा करना। सो जीवन जब बदल जाते हैं मनुष्यों के, उनका स्वभाव बदल जाता है, उनकी आदतें बदल जाते हैं, उनका आचरण बदल जाता है, उनका चरित्र बदल जाता है, एक नया मनुष्य हो जाता है। जैसे अंधे की आंखें खुल गई तो क्या हुआ, लोगों ने कहा ये उसके जैसा है। जॉन चैप्टर 9 में पढ़ते हैं, उसके जैसा है। किसी ने कहा वही है, वो खुद ही बोलता है फिर मैं वही हूँ। जॉन चैप्टर 9 में देखते हैं। और तब यहूदी 2-3 बार उससे पूछा कि क्या तेरी आंखें कैसे खुल गई, तेरी आंखें कैसे खुल गई। और जब जॉन चैप्टर 9 वर्स 25 पढ़ें जल्द से, 9:25। हाँ हाँ हाँ, ये है आपकी गवाही। लोग कह रहे वो तो पापी है, हैं। यूहन्ना 10:30 में लिखा है, यहूदी कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है।
जॉन चैप्टर 10:30 में लिखा है, लोग कहेंगे उसमें दुष्ट आत्मा है, वो पागल है। पढ़ो इसको, पढ़ो जरा 10:30 पढ़ो, जॉन 10:30 पढ़ो, यूहन्ना 10:30 पढ़ो। 10:30 है, ओह सॉरी, हाँ मैं पिता एक हैं, मैं भूल गया उसको। उसमें लिखा है, चलो माफ़ करना, मुझे दिमाग से उतर गया मेरे। उसकी गवाही क्या है? लोगों ने कहा कि वो पाप, उसको पूछा, 2 बार पूछा, उसने कहा मैं नहीं जानता हूँ वो पापी है या नहीं है। वो पापी है, 1 मिनट है, 10-20 हो गए भैया, जॉन 10:20 होगा शायद। हाँ 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 हाँ, यीशु मसीह के लिए बोला उन्होंने। जॉन 10:20 में उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्ट आत्मा है। किसमें? यीशु मसीह में। उस दुष्ट आत्मा है, वो पागल है। कौन? यीशु मसीह पागल है। और उसके क्यों सुनते हो, ये उन्होंने कहा। और 2 बार उनसे पूछा अंधे को, तब उसने कहा मैं ज़्यादा जानता नहीं भैया, इतना जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ, बस ये हमारी गवाही है। पहले मैं क्या था अब मैं क्या हूँ, पहले मैं क्या था अब मैं क्या हूँ। प्रभु ने जो है हमको किस प्रकार से हमारे जीवन को बदला, कैसे ढूंढ ढूंढ करके बचाया और उद्धार का दान दे करके, और किस प्रकार अपने मंडली में लेकर के आया, अपने घर में लेकर आया, और किस प्रकार से प्रभु जो हमारे अगुवाई कर रहा है, हमको तराश रहा है, उस दिन के योग्य बना रहा है। जिस जब वो आएगा हम उसके सामने खड़े होने के योग्य ठहरेंगे। प्रभु करे ऐसा। अब एक पद और पढ़ना चाहता हूँ, मीका की किताब 4 अध्याय में से, और यशाया 2 अध्याय और उसका 4 पद पढ़ें। आयजा चैप्टर 2 वर्स 4 पढ़ें तो। जाति जाति का न्याय करेगा, हाँ, और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध विद्या सीखेंगे। हाँ, लोग क्या करेंगे? तलवारें पीट कर हल्के फाल, भाले पीट कर हंसिया, 2 चीज़ करेंगे लोग। तलवारें पीट करके क्या हल्के फाल बनाएंगे। ये हल्का फाल क्या होता है? हल जो चलाते हैं, हम गांव में हल चलाते हैं तो हल वो नीचे लगता है लोहे का इतना बड़ा, जो कि धरती को चीरता है। आगे बैल चल रहे हैं, आप हल पकड़े हुए हैं। प्रभु ने कहा जो हल पर हाथ रख के पीछे देखता है मेरे लायक नहीं है, हैं? हम देखते रहते हैं निशाने की तरह, एक लाइन डाली, दूसरी उसके साथ साथ डालनी पड़ती है। तो हल के नीचे जो लोहा लगता है उसको फाल बोलते हैं। हल का फाल बनाएंगे। तलवारें, अब तलवार काटने वाला काम नहीं करेंगे वो, बल्कि वो चीरने वाला काम करेंगे। कठोर से कठोर भूमि प्रभु आपके द्वारा चीर देगा, कठोर से कठोर हृदय प्रभु नम्र कर देगा। इससे पहले उसको फसल बोई जाए उसको नम्र किया जाता है। कई बार हम 2-2 बार हल चलाते हैं क्योंकि मिट्टी अभी मुलायम नहीं हुई। आपके जीवन को जो तलवार के समान था, काटने वाला था, नुकसान पहुंचाने वाला था, हानि पहुंचाने वाला था, जान लेने वाला जीवन, तलवार जैसे जीवन, उसको पीट पीट कर अब आप क्या है? कठोर से कठोर हृदय को प्रभु आपके द्वारा नम्र कर देता है। आपका जीवन क्या बन गया? प्रभु खेती के लिए तैयार करने वाला, ताकि उसमें बीज बोया जाए और फसल उसमें लगे। हंसिया पीट कर तलवारें और भाले पीट कर क्या बनेंगे? तलवारें पीट करके हल्के फाल और भाले पीट करके हंसिया। अब हंसिया क्या होती है? वो फसल काटती है। हंसिया फसल काटती है और खत्ते में जमा करती है। 2 औजार बनाएगा प्रभु आपके मेरे जीवन के द्वारा। जब हम प्रभु के घर में आए हैं, यावा के भवन में आए हैं, याकूब के पर्वत पर आए हैं, और प्रभु के घर में आकर के हम रोपे गए, बढ़ाए गए उसके अंदर, और अब तलवारें पीट कर हमने हल के फाल बना लिए। कठोर से कठोर हृदय भी प्रभु आपके द्वारा जो है तोड़ देगा, नम्र कर देगा। प्रभु कहते हैं उनके मुख को देख कर मत डरना, प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ। मैं एक बात के लिए पछताता हूँ, हमेशा ही पछताता हूँ, पहले ही बोला होगा शायद। मैं प्रभु के बारे में बताने में कभी पीछे नहीं हटता। किसी को भी बताना, जब प्रभु मतलब बोल बात कर तो मैं बोल जरूर बोलता हूँ। एक बार मैं देहरादून जा रहा था और मसूर एक्सप्रेस से, और बैठा था डब्बे में, और गाड़ी हरिद्वार आगे निकली लक्सर के पास, और सामने 3-4 बड़े तगड़े तगड़े लोग बैठे थे, मूछ वाले। प्रभु मुझसे बोलता, उनको वचन सुना। मैंने कहा अच्छा, ये तो मुझे डब्बे से बाहर फेंक देंगे। वचन सुनाओ, बाहर फेंक देंगे। वो बार बार बोल रहा, उनको वचन सुना, उनको वचन सुना, उनको वचन सुना, लेकिन मैंने नहीं सुनाया। पछताता हूँ, आज ही पछताता हूँ मैं। पश्चाताप 2 किस्म का होता है, बताना चाहता हूँ, बंद करूँगा अभी। हैं, यहूदा पछताया, फांसी लगाई, गलत। पतरस पछताया, वापस आया। पश्चाताप, गलती हो जाए
कितना भी गिर जाए, धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, अधर्मी जहां पड़ा वहीं पड़ा रहता है। भेड़ अगर कीचड़ में गिर जाए तो चिल्लाएगी वो, निकालो 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 निकालो। क्यों? वो भेड़ है, प्रभु पवित्र है, प्रभु उनका भेड़ हो तुम। लेकिन सुअर को कीचड़ में डाल दो, आपको थैंक यू बोलेगा वो। थैंक यू श्रीमान, मेरी जगह पे मुझे पहुंचा दिया, यही मुझे आना चाहिए था, हैं? सो गलती हो जाती है। पछताया कौन? पतरस वापस आया, हैं? मेरी भेड़ को चरा, सेवा दी उसको। पछताया कौन? यहूदा। क्या किया उसने? फांसी लगाया। ऐसा काम नहीं करना, ऐसा काम नहीं करना। तो किस प्रकार से जो है प्रभु जो है, जब उनको मैंने गवाही तो नहीं दी मैंने, अब तक दुखी होता हूँ मैं। प्रचार करना, कठोर से कठोर हृदय भी प्रभु आपके द्वारा चीर देगा। आपको नहीं मालूम, आप एक वचन देंगे ना, उस वचन के द्वारा किसके जीवन में काम हो रहा है आपको नहीं पता लगेगा। एक बार वो दक्षिणपुरी में एक घर में प्रचार कर रहा था। अक्सर जाता हूँ, मिलता हूँ, प्रचार करता हूँ। वो क्रिश्चियन लोग नहीं थे, पर प्रचार वहाँ भी कर रहा था। वहाँ बैठा प्रचार कर रहा था मैं, और उसके बाद घर आ गया। 5-6 साल के बाद एक फ़ोन आया मेरे पास, आप सतपाल हैं? सतपाल जी। मैंने कहा भाई जी मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैं क्यों? भाई जी 5-6 साल पहले आप एक घर में बैठे हुए थे और आपने यीशु मसीह के बारे में बताया था। मैं बताता हूँ भाई, तो इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आपका नंबर मेरे पास नहीं था, मैंने आपके भाई से पूछा, उससे पूछा, नंबर लिया। मैंने कहा ठीक है, कहाँ रहते हो? उनका घर एड्रेस लिया और मैं उनके घर गया, दक्षिणपुरी में उनके घर गया। जाके देखा, भाई पहचान गया, बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी उसकी शक्ल से डर लगता है महेंद्र है। पैर में प्लास्टर लगा, उसका एक्सीडेंट हुआ था। भाई जी वो जो वचन आपने कहे थे 6-7 साल पहले, वो उन्होंने मुझे कायल किया कि ये सही रास्ता है। भाई मैं वापस आना चाहता हूँ, प्रभु के पास आना चाहता हूँ। आप जो वचन दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हमारे यहाँ पवित्र है, पवित्र हमारे मंडली में है, जो बिना प्रचार के नहीं देख सकते घर में वो हैं। प्रचार उसको प्रभु ने वरदान दे रखा है। आप सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो। भले ही वो समय चला गया हमारा, ये माइक लेकर के रोड पर खड़े होते गाते थे, खुदा करे दोबारा आए हैं, लेकिन सुसमाचार तो आप दे सकते हैं, पड़ोसी को, आसपास के लोगों को गवाही दे सकते हैं। सो फिर उसने कहा मैं प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूँ। 23 जून को, आज से 5-6 साल पहले, उसने घुटने टेके, घुटने तो टूटा हुआ था, क्या टेकेगा उसने प्रार्थना की प्रभु को ग्रहण किया। आज भाई देहरादून में है, मसीह में है वो, अभी मसीह में है वो। सो जैसे वो हमको मैसेज देता है वहाँ से। सो प्रियो, हम याकूब के परमेश्वर के यहोवा के पर्वत पर आए हैं। हम लोग याकूब के परमेश्वर के भवन में आए हैं और उस परमेश्वर ने हमको अपने मार्ग दिखाए हैं और हमारे जीवन को उसने बदल दिया है और हम अपने घराने में जोड़ दिया है। हम है प्रभु का स्वर्गीय घराना, स्वर्गीय घराने में जोड़ दिया है। परमेश्वर के लोग बना दिया, निज प्रजा कहा, निज धन कहा। हमारा जीवन तलवार के समान था, काटने वाला, हल के फाल बना दिया। आपके द्वारा प्रभु आत्मा को बचा रहा है, आपके द्वारा कठोर से कठोर हृदय वो तोड़ रहा है। आप नहीं तोड़ रहे हैं, वो वचन तोड़ रहा है। आप नहीं तोड़ रहे हैं, जो आपने वचन कह दिया ना वो चुभ जाता है। जब आप कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, बाइबल से समझा रहे हैं, किसी को बता रहे हैं ना, तो वो चुभ जाता है, दूसरा आदमी चुभ जाता है। वो बात उसकी सोचता रहता है, जैसे मैं टॉपिक भाई के बारे में बताया था। सो जीवन को बदल देता है। हंसे तलवार पीट करके हल के फाल बनाया, और जब फसल पक जाती है दूसरा यंत्र क्या बनाया? भाले पीट करके हंसिया बना दी, खट्टे में बटोरने के लिए। उद्धार मिल गया, पाप क्षमा हो गए, जीवन बदल गया। अब सो जाओ आराम से। नहीं, प्रभु के लिए काम करना है, आत्मा बचानी है, फल बटोरना है। स्वामी ने अपने सेवकों को 5 तोड़े दिए। जब वापस आए तो 5 वाले ने के बाद 5 और कमा दिए, 10 हो गए। जिसको 4 दिए थे उसने 2 दिए थे, उसको 4 दिए। एक को 1 दिया था, वो पता क्या कहता है? वो कहता है मैं जानता हूँ तुम तो कठोर स्वामी है, जहाँ तू रखता नहीं वहाँ से उठाता है, जहाँ तू बोता नहीं वहाँ से काटता है, और मैं डर गया। तब स्वामी ने एक बात कही थी। स्वामी ने बोला जब तू मुझे जानता था मैं कठोर हूँ, जहाँ रखता नहीं वहाँ से उठाता हूँ, जहाँ बोता नहीं वहाँ से काटता हूँ, तो मेरा पैसा सर्राफों को दे देता, ब्याज समेत मैं जवाब लेता उनसे, मैं उनसे पैसे लेता। अगर तू दे देता उस समय तो उसका जो ब्याज समेत है मैं उससे ले लेता। उसने मैं डर गया, तेरा पैसा मैंने मिट्टी में छुपा दिया। ये मिट्टी है, ये हमारा शरीर मिट्टी है, मन में ही रखा है, प्रभु के बारे में बताने किसी को नहीं बताया। सो प्रियो, प्रभु चाहता है जब प्रभु ने हमको यहोवा के पर्वत पर लाया है, हम वो लोग हैं जो मार्ग पूछते पूछते आए हैं। मसीह के लोग नहीं थे, मसीह के विरोध में खड़े थे। जब बहस होती तो ईसाइयों से बोलता था,
अरे तुम तो चुल कटे हो, चुटिया काटने वाले, चुल कटे बोलते हैं ना गढ़वाली में, चुटिया काटने वाले हो। अब तो खुदा ने काट दिए, गंजा बना दे बिल्कुल। जब बाल कटवाते थे बचपन में ना तो चुटिया छोड़ते थे बड़ी। हम गाली देते थे ईसाइयों को, है तुम तो ईसाई हो, धर्म बदल दिया, जात बदल दिया, ये बन गया वो बन गया। प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ नहीं बता। अब वो स्थान पे हम खड़े हैं, हमें लोग बोलते हैं, वो हम सुनते हैं, पहले हम बोलते हैं, अब हम सुनते हैं। सो प्रभु के भवन में आए हैं, यावा के पर्वत पर आए हैं, और इस प्रकार से जो है प्रभु ने हमको, हमारे जीवन को बदला है, अपने घराने में जोड़ दिया है। अब न कोई यहूदी है, न यूनानी है, न धनी है, न गरीब है, न गोरा है, न काला। बहुत अच्छा गीत है वो, बहुत अच्छा गीत है वो। वहाँ पे मीटिंग हो रही थी, क्या कहते हैं, अबू धाबी में स्पेशल मीटिंग थी, जून 28, 29, 30 दिन की। और भाई पॉल आए थे पूना से, मैं दुबई से वहाँ गया। जब दुबई से हम बस में जा रहे थे, वहाँ पे बहुत अच्छे मंदिर, बड़ा का मंडली है दुबई में, और बस में 2 बसें गई थी हमारे, और बस में हम बैठे थे। यही किताब गीत की जो हमारे पास है यहाँ मोटी वाली, यही उनके पास भी है, इसी में से गाना गाते हैं। खाने के समय प्रेज क्या वो जो खाना खाते थे हम, गाना गाते हैं ना, वो भी करते हैं। सो रास्ते में गाते गाते जा रहे हैं, वही आनंद जो यहाँ था। हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना, हम हैं प्रभु का स्वर्गीय घराना। ना कोई काला, ना गोरा, ना धनी, ना निर्धन, ना, बहुत आनंद मसीह में है। और ये आनंद का मिलता है जब हम प्रभु को ग्रहण करके मसीह के मार्ग पर चलते हैं। यावा के पर्वत पे आए हैं, याकूब के भवन में आए हैं, और याकूब ने कहा अपने वस्त्रों को बदल दो, मूर्तियों को दूर करो, और क्या है, हम यहोवा के भवन में जा करके और वहाँ मैं प्रभु की आराधना करूँगा। तो प्रभु करे हमारा बदलावा जीवन, आपके बदलावा जीवन आपके घर वाले देखेंगे, आपकी पत्नी देखेगी, आपका पति देखेगा, आपका भाई, आपके बहन देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, गांव के लोग देखेंगे। बदलावा जीवन, बदलावा जीवन। सो प्रभु करे प्रभु हमारे जीवन को बदला है, और इस प्रकार गवाह हमारे बने। गवाह क्या है, वो नहीं जो 10 साल पहले क्या था मैं, आज क्या है, आज आपकी गवाही क्या है, आज आपके बारे में लोग क्या कहते हैं। प्रभु ने पूछा था अपने चेलों से, लोग मुझे क्या कहते हैं। इसलिए नहीं कि प्रभु को शौक था या प्रभु चाहता था कि मेरी तारीफ करें। फिर प्रभु कहता, तुम मुझे क्या कहते हो, क्या स्थान दे रहे हो अपने जीवन में मुझे, तुम मुझे क्या कहते हो, मुझे क्या स्थान दे रहे हो। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है, आपके जीवन में मेरा क्या स्थान है। क्या पहला स्थान मेरा है, पति से बढ़कर मैं हूँ, पत्नी से बढ़कर मैं हूँ, बेटे से बढ़कर मैं हूँ। कल हम इब्राहिम के बारे में सुन रहे थे, बेटे को बलि करने के लिए ले गया हो, और इब्राहिम में लिखा चढ़ा दिया, बलि चढ़ा दिया उसने। सो प्रभु करे ऐसा हमारे जीवन हो, ऐसे हमारे गवाही हो, और इस प्रकार चलते हुए हम प्रभु के महिमा करने पाएँ। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। जय मसीह की। अति अनुग्रहकारी और प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, True and faithful God, हमारा सच्चा और विश्वास परमेश्वर, thank thee, Lord, that you have brought thy children to thy house to hear thy word. प्रभु जी अपने लोगों को अपने घर में लेकर आया ताकि वचन सुने। Thank thee the way you have spoken through thy servant, that Just the- word may be rooted and grounded in our hearts, and may we walk according to thy word. जिस तरह से प्रभु जी आप वचन लेकर आए, धन्यवाद देते हैं। उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में, हृदय में वो जड़ पकड़कर फलवंत बने। Remaining time also may be a great blessing for us. बाकी समय भी हमारे लिए बहुत ही आशीष का कारण बनाइए। Lord, thy people, Lord, may be ready for Bible study at 10 o'clock. आपके लोग प्रभु जी 10 बजे बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हो जाए, Be with us. हमारे संग रहे। We give this thanks and prayer in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. ये प्रार्थना धन्यवाद आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Now unto him who is able to keep us from falling, present us faultless before the presence of his glory, with exceeding joy, to the only wise God our Savior, be glory, dominion and power, both now and forever. Amen. है प्रभु का स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। हम है प्रभु का स्वर्ग घराना, जिसमें प्रभु खुद रहता है। Song number 502. 502 नंबर। महानुदार जो है प्रगट किया प्रभु ने, पर्वत की चोटी से ऊंचा महान
పరిగెత్తుదాం. चित्तड़ समान सब थे औने के पात्र में थे हम चित्तड़ समान सब थे औने के पात्र में थे ताकि नहीं जंगल में उसने पाया सुनसान और मरुभूमि में जंगल में उसने पाया सुनसान और मरुभूमि में लिए मेरा और संभाला हमें आंखी पुतली की नाई लिए मेरा और संभाला हमें आंखी पुतली की नाई जो है प्रकट किया